Hi, Mr. Soham Sharma. Yeah, this is Sumant Kashyap. Is my voice audible to you? Good morning, sir. Yes, it's audible, sir. Okay, just want to let you know that your interview was already scheduled for today and I'm going to start with the initial discussion. Sure, sir. I'm waiting for the same. Okay, Soham, I have your resume in front of me, but tell me more about yourself. Thank you, sir. Thank you, sir, for this opportunity. I'm from Kanpur, UP, and belong to a nuclear family. My father is a central government employee and my mother is a housewife. My younger sister will appear her CBSE 12th board this year. On an individual front, I am graduate in commerce stream from Dayanand College. I perceive myself confident and, sir, a hardworking individual. Why do you want to work for this company? Sir, I would be proud to work for a company like yours, such a long history of leadership in the industry, sir. I have carried out web research and believe that the company's product and its future projections are very impressive and promising, sir. So, do you consider yourself successful? Sir, I feel successful when I meet my short-term as well as long-term goals, sir. I try to achieve the set goals and work hard as much as I can. And what are your salary expectations? Sir, as of now, I haven't thought much about it. I'm more focused on learning, sir. Can you tell me what actually motivates you? Sir, I'm very result-oriented person. My primary goal is to get the desired result, sir. What experience do you have in MI's field? Sir, I'm fresher for this profile. Do your skills match this job? Sir, I feel my skills are best fit for this job. Okay. Mr. Sharma, do you have any question for me? Sir, I would like to know what are the next step for me are. Okay, Swam, you need to visit our office tomorrow at morning 10 a.m. to have technical discussion with our manager, Mr. Rohit Dixit, sir. Is it fine? Sure, sir. I will be there on time. Okay, Swam, have a nice day. Take care. Bye-bye. Okay, sir. Thanks. Thanks, sir. शुभम शर्मा जी, चलिए जी, जैसा कि मैं आपका सीवी को देख पा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये सीवी कह रहा है कि आप अकाउंट ग्रेजुएट हैं और ऑलरेडी टैली की नॉलेज रखते हैं। साथ के साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ मैं कि ये जो जिस प्रोफाइल है, हमारे इस प्रोफाइल के लिए ओपनिंग निकला है, उसके लिए आप फ्रेशर हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जान सकता हूँ? सर मेरा डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग में काफ़ी टाइम से मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है सर, इसलिए मैं स्विच करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं फर्दर मैंने अपना डोमेन स्विच करने की सोचा है। मतलब आप अभी जिस प्रोफाइल पे हैं और उसमें सुमन सर से मेरी बात भी हुई थी, वो आपने अपना पैकेज भी मेंशन किया हुआ है, अच्छा खासा पैकेज है आपके पास। उसके बाद ये प्रोफाइल चेंज करने की कोई ख़ास वजह जिसकी वजह से आप ये प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे हैं? और एक्चुअली मैं देखा है तो पूरा डोमेन स्विच कर रहे हैं आप जिस बैकग्राउंड से हैं पूरा बैकग्राउंड स्विच करके आप दूसरे बैकग्राउंड में मूव कर रहे हैं, वजह जान सकते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम से एनालाइज़ किया है, मैंने रिसर्च किया है इस पर, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है हमारी, इसलिए मैंने स्विच करने का प्लान बना लिया है। शर्मा जी, आपको पहले बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा। भले ही आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए हम लोग कैंडिडेट सर्च कर रहे हैं, हमारे इस प्रोफाइल के लिए आप फ्रेशर हैं, याद रहे। और सैलरी भी जो ऑफ़र यहाँ से होगी वो भी फ्रेशर की सैलरी ऑफ़र होगी, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जानता हूँ सर, बट कोई नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ सर। मैं स्टार्ट करूँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया है आपने। अधिकतर लोग जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, चाहे वो प्रोफाइल कैसे भी हो, लेकिन अगर एक सैलरी अच्छी खासी उनकी हो जाती है तो वहाँ से नीचे आना, भले ही कितना अच्छा प्रोफाइल हो, लेकिन वहाँ से नीचे आना इतना आसान नहीं है। बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है आपने और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, ठीक है, और तभी आपने आगे करियर में प्रोसीड करने का सोचा है। आई एम राइट? यस सर, इतना आसान नहीं होता है। चलिए शर्मा जी, कुछ रिपोर्टिंग और एक्सेल की स्किल्स आपसे जानना चाहेंगे। शर्मा जी, आप मुझे एक बात बताइए, सपोज मैं आपका मैनेजर हूँ ही तो
मुझे इंस्टेंट रिपोर्ट चाहिए होता है। मुझे कुछ मीटिंग में जाने होते हैं या कुछ काम होता है या कहीं प्रेजेंटेशन देना है, तो ऑफिस डेटा का जो समरी रिपोर्ट है, मुझे रिपोर्ट चाहिए होता है, जिसमें मुझे डे वाइज रिपोर्ट हो गया, आपका मंथ वाइज रिपोर्ट हो गया, आपका ईयर वाइज रिपोर्ट हो गया, क्वार्टरली सेल्स की रिक्वायरमेंट हम लोग को होती है। इस टाइप के रिपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन में आप हमसे, मुझे उस रिपोर्ट की उम्मीद है, तो कैसे आप वो रिपोर्टिंग करके मुझे देंगे? इंस्टेंट चाहिए मुझे, बताएं ज़रा। सर इसमें पिवोट टेबल यूज़ करूँगा और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो जो आपका सोर्स डेटा होगा उसमें से वो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके पुल करके ला दूँगा। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको एक डेटा दूं जो कि बहुत ही बेहद ही ख़राब हालत में है, मतलब ख़राब हालत कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अब वो कहीं से लाके रॉ डेटा मेरे पास दिया गया है, वो मैंने आपको दिया। अब मैंने आपको डेटा जो दिया उसके बेस पे अब आप से मैं उसके बेस पे एनालिसिस करवाना चाह रहा हूँ डेटा। अब एनालिसिस दैट मीन्स मैं उसके बेस पे आपसे रिपोर्टिंग चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में उस रॉ डेटा के बेस पे रिपोर्टिंग करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? सर इसके लिए पिवोट टेबल यूज़ करूँगा और आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी रिपोर्ट की जो आप चाहते हैं वो मैं पुल करके ला दूँगा। ये डेटा क्लीनिंग से आपका मतलब, आपने वर्ड यूज़ किया डेटा क्लीनिंग, तो डेटा क्लीनिंग से आपका क्या मतलब है? एक बार थोड़ा सा उसको एलबोरेट करिए। तो सर सबसे पहले तो डेटा को पहले वो करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग डेटा में जाके होता है डेटा और इंपोर्ट फ्रॉम डेटा, इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा टैब में जाके इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो करने के बाद फिर हमें डेटा को सर वो भी करना होगा, क्लीन करना होगा। जैसे कि सर एक्स्ट्रा स्पेस लग गए हैं या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो होता है सर वो इंपोर्ट हो गया है, ठीक है सर, कुछ डेलीमीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इस सबको पहले वो करना होता है सर, क्लीन कर हटाना होता है सर। उसके बाद तब वो डेटा एनालाइज करने लायक बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या सब करते हैं शर्मा जी, ये बताइए तो। सर कई बार होता क्या है कि एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट जब कर लेते हैं ना, एक्सेल सीट में जब इंपोर्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल डेटा को, जैसे सर वो नोट पैड का सीट होता है या CSV फाइल होता है या कोई अदर जो भी किसी भी फॉर्मेट का फाइल होगा, तो उसको जब इंपोर्ट करेंगे अपने उसमें, तो जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो ऐसा आता नहीं है सर। तो उसमें कई बार एक्स्ट्रा स्पेस लगे होते हैं, डेलीमीटर्स लगे होते हैं, कॉमा सेपरेटेड, बहुत सारे सर, या सर या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं उसमें सर। तो उसको हम या तो फंक्शन, कुछ तो फंक्शन से भी हट जाते हैं, या उसके लिए कुछ टूल्स जैसे सर टेक्स्ट टू कॉलम, इसके थ्रू हम पहले डेटा को क्लीन करते हैं। उसके बाद तभी एनालाइज हो पाएगा ढंग का, जब डेटा रहेगा, जब ऑर्गेनाइज डेटा होगा, तभी उसको के बेस पर हम एनालाइज कर पाते हैं। यस सर। एक्सेल का कितना यूज़ करते हैं आप ऑफिस में, ये बताइए। एक्सेल का यूज़ आपके अपने ऑफिस में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपके ऑफिस में आप कितना यूज़ करते हैं एक्सेल का, ये बताएं। सर वहाँ तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऑफिस में ज़्यादा मैं यूज़ कर नहीं पाता हूँ, उनका बना बनाया फॉर्मेट है, तो पिवोट ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है। बस जितना वो बोलते हैं बस उतना ही रिकॉर्ड उठा के पुल करके डेटा दे दिया। और वैसे सर मैं ऑफिस में मेरा ज़्यादा एक्सेल का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्स्ट्रा आवर्स में घर पे आके मैं एक्सेल के बहुत अभी टच में हूँ, प्रैक्टिस में हूँ सर मैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि कोई स्पेसिफिक सीट है, जिस स्पेसिफिक सीट में मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट समझिए आप पहले, कि जो यूज़र उसमें एंटर करे वो सिर्फ और सिर्फ नंबर एंटर कर सके, मतलब नंबर के अलावा उस वर्कशीट में किसी और डेटा को एंटर करने की परमिशन ही नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जरा बताएं। सर इसमें तो वो लगा देंगे, वैलिडेशन लगा देंगे सर, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन, और वहाँ कस्टम जाके वो चेक करा लेंगे कि जो आपने वर्कशीट के लिए बोला है ना कि इस वर्कशीट में नंबर ही एंट्री होना चाहिए, तो उस वर्कशीट के लिए चेक करा लेंगे फंक्शन यूज़ करके। इसके लिए हम इज नंबर फंक्शन के थ्रू चेक करा लेंगे वहीं से डेटा वैलिडेशन, तो कंस्टेंट लग जाएगा कि इसमें नंबर ही एंटर होगा, उसके अलावा दूसरा एंट्री नहीं करने देगा। और यदि हमें सिंगल सेल में ही मल्टीपल वैल्यू चाहिए हो, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ये बताइए तो। इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, वहीं डेटा वैलिडेशन के थ्रू बन जाएगा सर, लिस्ट बना लेंगे डेटा वैलिडेशन को यूज़ करके। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, कुछ
प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका चेक करना चाहेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन हैं, सिर्फ जानना चाहता हूँ फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आप कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन को आप मेरे सामने बैठ के अटेम्प्ट कीजिए। साथ के साथ अटेम्प्ट करने के साथ साथ उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि जो भी लॉजिक आपने लगाया उसमें, वो लॉजिक आप कैसे लगाए हो, सो दैट आई केम टू नो कि चीज़ों का डेप्थ आपको पता है। तो आप सिस्टम पे आइए, लेकिन एक्सप्लेन भी करना है, आपको याद रहे एक्सप्लेन भी करना है, बट ये भी याद रहे साथ के साथ कि टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम दिया जाएगा आपको। उसी लिमिटेड टाइम के दौरान आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, जिससे मतलब जो मैं चेक करना चाहता हूँ, शायद इसलिए बुलाया है आपको। ठीक है, तो आइए आप जरा सिस्टम पे आइए। तो चलिए आइए, तो आइए सिस्टम पे आइए। रोहित सर, जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया है, मैं एक एक करके क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की भी साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ सर। टेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास, और उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है। ये वाला जो पैरेंथेसिस के अंदर है, दैट मीन्स 101 XS-101, आपने मुझसे वो बोला है एक्सट्रैक्ट करके लेकर आने के लिए। मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ सर। इक्वल टू, मैंने पास किया मिड में सर मैंने ले लिया टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर मुझे यहाँ से चाहिए, पैरेंथेसिस के बाद से चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा सर फाइंड में कर लूँगा किसको, मैं फाइंड कर लेता हूँ इसमें इस वाले ब्रैसेस को, इसको फाइंड कर लिया मैंने, इधर वाले को, कॉमा किसमें से, इसमें से, ब्रैकेट बंद और +1। इससे सर मैं ये जो पैरेंथेसिस जो है ना सर, उससे अगले उस पर पहुंच जाऊंगा मैं, मतलब 1 पे पहुंच गया, मेरा कर्सर जो है 1 पे आ गया, अब एक्टिव कर्सर, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में मैं फिर से पास कर दूंगा फाइंड, और इस बार मैं फाइंड टेक्स्ट में इधर वाला जो है सर, ये वाला ब्रेसेस, ये कॉमा किस में से, तो इसमें से, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और अभी काम नहीं चलेगा, माइनस करना होगा मुझे जो पहले वाला ब्रेसेस मिला था, माइनस, फिर से चलाऊंगा सर फाइंड, और इस बार फाइंड टेक्स्ट में ये इधर वाला ब्रेसेस, कॉमा विद इन टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट में मैंने सर फिर से ये ले लिया ये, और -1 ब्रैकेट बंद, फाइंड मिड लिया, फाइंड चलाया +1, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे कह रहा है वहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे तुम्हें ये मिले उसमें से माइनस कर दो जो पीछे वाला मिला था, आ जाना चाहिए इस तरीके से सर। ये सर आपने इस क्वेश्चन में बोला है कि मैक्स फॉर नोएडा, मतलब इसमें से जो नोएडा है, नोएडा में भी नोएडा का सबसे जो मैक्सिमम होगा वो निकाल के लेके आना है। आपने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे रखा है, इसमें से जो भी मैं सिटी पास करता हूँ उसका जो सबसे मैक्सिमम होगा वो निकाल कर मुझे लेकर आना है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इक्वल टू, पहले पास करूँगा मैक्स, और मैक्स के अंदर मुझे कंडीशन पास करना होगा सर। यहाँ पे पास कर देंगे इफ़, यदि लॉजिकल टेस्ट में यदि ये रेंज इक्वल टू ये हो, कॉमा इस रेंज की वैल्यू यदि इसके बराबर हो जाए और ये बात सही हो, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो सर ये सेल्स वाला रेंज पास कर देंगे। एंटर से नहीं आएगा सर, एंटर गलत हो जाएगा, एंड ये चूँकि रेंज पास कर दिया हमने तो अब ये एरे बन चुका है, मतलब ग्रुप हो गया, तो इस मुझे एरे पास करना होगा, इसको एज ए एरे बना के पास करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर पास करेंगे सर। हाँ सर, अब आ गया सर, इस तरीके से करूँगा मैं। यहाँ पे नोएडा की जगह पे फिर मैं दिल्ली लूँगा, तो दिल्ली, यहाँ पे गुड़गांव। सर इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपने बोला है शायद, एरे फार्मूला वर्क इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाना है क्या? ओके सर, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ये मैं लगा सकता हूँ, इकट्ठे पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद अब मैं जाऊँगा सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल पे गया, और यहाँ पे जाके यहाँ दोनों कंडीशन मैच, दोनों को ट्रू कराना पड़ेगा हमें। इक्वल टू पास कर देंगे एंड
ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा एंड और यदि इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए, नोएडा बराबर हो जाए गुड़गांव के, इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए इसके, एक कंडीशन ट्रू। लेकिन इसके रो के आगे से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें नोएडा एक ही नहीं है, कई सारे नोएडा है, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ भी आना है, रो में नीचे की तरफ आना है, इसलिए मुझे इसके आगे से ये हटा दूंगा मैं इसको हटा देने के बाद यहाँ पे एक कंडीशन मिल गया सर, पानी पीना है। ओके सर, ये हो गया ये। ओके सर, ये 5 यदि इसके बराबर है, एक कंडीशन सही है, तो मैं कॉमा साथ के साथ, ये पहला कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन अभी जो लगाया था मैं सर वही पास कर दूं तो दूसरा कंडीशन में फिर से मैक्स इफ, वही सेम कंडीशन जो अभी वहाँ गुड़गांव के लिए निकाला था ना सर, जिससे वो मैक्सिमम आ गया था, बस वो दोबारा मुझे एक बार मैं कर देता हूँ। मैक्स के साथ इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि फिर ये वाला रेंज बराबर हो जाए इसके, तो ये और ये दूसरा ब्रैकेट मैक्स का बंद, और अभी तीसरा ब्रैकेट बंद करूंगा तो कुछ होगा नहीं, ये बराबर हो जाए इसके, और इसमें से इसके रो के आगे से हटाऊंगा जिससे कि ये नीचे की तरफ ये कर सके चेक। ये ब्रैकेट बंद और फॉर्मेट में जाकर अब कलर लगा दूंगा, आ जाएगा सर। यहाँ पे गया, अब कर दिया ओके, और ओके सर, यस सर हो गया। ये नोएडा का मैक्सिमम, ये गुड़गांव, तो गुड़गांव में 388 है और दूसरा 280 है सर, सही है सर। इस क्वेश्चन में आपने पूछा है कि एक्सट्रैक्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ये हो जाता है INZ 215। अच्छा, विदाउट यूजिंग लुकअप फंक्शन, सर इसमें वी लुकअप नहीं लगा सकते, ये लुकअप नहीं लगा सकते, तो फिर वी लुकअप के बिना, ठीक है सर। रिकॉर्ड तो उठा के लेकर आना है ना, कोई बात नहीं, आता है मुझे। इक्वल टू बिना वी लुकअप के, सर एक फंक्शन होता है बिना वी लुकअप के, डी गेट, उससे मैं कर सकता हूँ सर ये, यस सर। इक्वल टू डी गेट डेटाबेस का मतलब ये पूरा डेटाबेस, इसमें मैं पूरा डेटाबेस पास कर दूंगा, ये डेटाबेस पास कर दूंगा, फ्रीज भी कर देता हूँ, कॉमा फील्ड का नाम इसको चाहिए, फील्ड का चाहिए नाम इसको, तो मैं फील्ड क्या चाहिए रिकॉर्ड के, इसमें से मुझे रिकॉर्ड कौन सा चाहिए, तो मैं एरिया, तो पहले एरिया पर रख दिया, यहाँ ये मुझे चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन ऐसे लेना होता है सर। एक मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे ये आता है मुझे, मैं इसमें क्या पास किया पहले मैं बता देता हूँ। इसको सर फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो ये जब इधर राइट की तरफ खींचूंगा तो ये मूव कर जाएगा सर। इसमें क्या किया, डी गेट, ये भी सिंगल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके लेकर आता है डी गेट, लेकिन वर्टिकली ऐसे लेकर आता है ये, तो ये कैसे करेगा काम, डी गेट डेटाबेस फंक्शन में सर जो फील्ड का जो हेडर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पूरे हेडर को के समेत तब डेटा को लेंगे हम उसमें सिलेक्शन में। उसके बाद ये जो B2 मैंने लिया फील्ड, मतलब आपको कौन सा रिकॉर्ड उठा के लेकर आना है, तो वो हो गया एरिया, और उसके बाद फिर क्राइटेरिया का रेंज, तो क्राइटेरिया के रेंज में ये एम्प्लॉय आईडी के साथ पास करना होगा, क्योंकि सर अगर क्राइटेरिया पर सीधा क्लिक कर देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो हेडर पे चलता है। फील्ड का नाम इस फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
इसलिए मैंने क्राइटेरिया का नाम जो पास करेंगे वो सीधा क्राइटेरिया पे क्लिक नहीं करके इसमें हेडर के साथ तब क्राइटेरिया लेंगे सर ये चलेगा, ये एंटर, और यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। ये मैंने इस पे मैं यूज करता था पहले, लेकिन ये सर सही है। ये INZ 215 जयश्री सक्सेना 3443, ये इसका रिकॉर्ड आ गया सर। इसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मैं दूसरा रिकॉर्ड भी डाल कर दिखा दूंगा। तो जैसे कि INZ 207, ये सर चेंज हो गया सर। इसमें कह रहे हैं क्रिएट द फॉर्मूला। अच्छा, मतलब ये 100 रुपीज़ का सेल्स इसने किया तो इसका परसेंटेज यहाँ रखा सर। पहले तो डेटा, ये तो डेटा ही गलत है सर। ये जो डेटा का एजम्पशन जो आपने ये सर, ये ऐसा नहीं निकलेगा, इसमें डेटा का एजम्पशन गलत है। ये इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा पहले, इसलिए शायद आपने वहाँ पे लिख रखा है ना। एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ ना, मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ ना सर। इसमें क्या करूँगा, जो एजम्पशन टेबल है ना ये गलत है सर। ये फॉर्मेट इसका अगर ऐसा है ना, ये डेटा का फॉर्मेट अगर ये ऐसा है तो सर ये भी ये अगर वर्टिकल है तो सर इसको वर्टिकल रखना पड़ेगा। ये अगर हॉरिजेंटल होता तो, अगर हॉरिजेंटल होता तो ये सही था। तो पहले मैं इस डेटा को सर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर्सर रख के Alt+HVT ट्रांसपोज कर दिया डेटा। अब सर निकल जाएगा, देखो ये इसका फॉर्मेट भी ऐसा है, इसका फॉर्मेट भी ऐसा है। अब सर ये आसान हो गया मेरे लिए। अब मैं इक्वल टू ये इनटू ये, और बस इसमें फ्रीज करना है मुझे। तो इसका रो चेंज नहीं होना चाहिए इसका, तो B4 में से 4 फ्रीज हो जाएगा। इसका कॉलम फिक्स रहना चाहिए और रो ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो इसका मैं उठा के इसका कॉलम को कर दूंगा फ्रिज, और ये हो जाएगा सर। ये सही है। ये मैं अब इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, उसके बेस पे निकाल दिया, यहाँ से Ctrl+R कर दिया, अब आ गया सर। बस यहाँ तो फिर सम कर देंगे सर, इक्वल टू सम, और ये बस इतना रेंज ले लिया, इससे सम हो गया ये वाला हिस्सा। Ctrl+R, और नेट इनकम निकालना है। तो नेट इनकम मतलब क्या, टोटल सेल्स माइनस जितना खर्चा हो गया उसका एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ऐसे Ctrl+R। इस टाइप से सर कर सकता हूँ सर। इस क्वेश्चन में आपने पूछा है लिस्ट 1 दे दिया आपने, लिस्ट 2 दे दिया। अच्छा, ऐसा आउटपुट चाहिए, ये चेंज लेकिन किस भी हाथ पे, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जब दोनों वैल्यू बराबर है तो सेम, जैसे यहाँ मैथ अच्छा मैं कर सकता हूँ सर। जब यहाँ मैथ ये जब दोनों, ये नाम भी और सब्जेक्ट भी ये दोनों बराबर हो जाए तो सेम, और अगर नहीं, हाँ अगर नहीं बराबर हो तो चेंज। मतलब दो कंडीशन एक साथ। मैं अपना आउटपुट सर यहाँ अलग से निकाल देता हूँ। मैं अपना आउटपुट यहाँ मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पे सर। इसमें मैं पास करूंगा इक्वल टू इफ, यदि कंडीशन एक नहीं है, दोनों को दोनों मैच कराना है ना, और इफ के बाद यदि एक नहीं कंडीशन, यहाँ दोनों पहले मैच, यही के यही मैच करा लेते हैं, यही पास कर देता हूँ सर। एंड यदि इस नाम की वैल्यू इस वाले नाम के बराबर हो जाए, ये नाम यदि इस नाम के बराबर हो गया, पहला कंडीशन ट्रू हो, साथ के साथ ये वाला सब्जेक्ट भी बराबर हो जाए इसके। हाँ, दो कंडीशन मैच कर गया, दोनों को दोनों अगर वो बराबर है और ये बात सही है तो सेम है, ये दोनों तब सेम है, और नहीं तो चेंज है। इस टाइप से यदि दोनों का है बराबर तो सेम, नहीं तो चेंज। एंटर देखता हूं सर सेम आंसर है आपका वाला, मेरा सेम आंसर है।